میں جیوت رہوں یا نہیں رہوں. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. جب کوئی بڑا اور بھاری بھرکم پیڑ گرتا ہے تو آس پاس کی دھرتی ہلتی تو ہے ہی. خالصتان سکھوں کی آنکھوں میں بسا وہ خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے وہ نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر کی جستجو میں انہیں پھانسیاں اور قید و بند کی صحبتیں ملی. ان کے گھروں کو لوٹا گیا، عصمتوں کو پامال کیا گیا، کاروبار تباہ ہوئے. مطالبہ صرف ایک ہے کہ وہ خالصتان کا خواب اپنی آنکھوں سے نوچ پھینکے. اتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی بھی ہمارے زخم تازہ ہیں. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ. آخر خالصتان کا مطالبہ ہے کیا جس نے دنیا کے دو بڑے ممالک کینیڈا اور بھارت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ آخر خالصتان سے بھارت کو ایسا کیا خوف ہے کہ وہ اپنی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے بیرون ملک مقیم خالصتان کے حامیوں کو قتل کرنے کے لیے ہر عالمی ضابطہ روندنے کو تیار ہے؟ اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیوں سکھ بھارت میں ایک صوبہ بن کر رہنے کے بجائے ایک آزاد ملک کا خواب اپنی آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں؟ بھارت کا دعویٰ ہے کہ خالصتان کا مطالبہ کرنے والے سکھوں کی تعداد بہت کم ہے اور سکھوں کی اکثریت بھارت کے ساتھ رہنے میں خوش ہے. بھارت کا میڈیا دن رات اسی پروپیگنڈے کا پرچار کرتا ہے، مگر ہر سکھ کے لاشعور میں ایک آزاد سکھ ریاست کا خواب موجود ہے. اس خواب کی جڑیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس وسیع و عریض سلطنت میں پیوست ہے جس کی سرحدیں آج کے مشرقی مغربی پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، خیبر پختونخوا، افغانستان کے کچھ حصوں اور جموں کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی. ہر سکھ اس عظمت رفتہ کے حصول کا خواہاں ہے، چاہے یہ ماضی کی عظمت رفتہ کی ایک جھلک ہی کیوں نہ ہو. خالصتان کے قیام کی تحریک اسی جھلک کے حصول کے لیے جد و جہد کا تسلسل ہے. یہ بالکل ایسا ہی خواب ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کئی بر اعظموں پر پھیلی حکومت کے دوبارہ حصول کا خواب، جیسے یہودیوں کے لیے اپنے ایک آزاد ملک کا خواب تھا. ماضی کے جھروکوں میں جھانکے تو بہت دور تک واقعات کی ایک ایسی ترتیب نظر آتی ہے جو اس خطے میں سکھ مت کی پیدائش اور پھر اس کے پیروکاروں کے عروج کی گواہ ہے. مملکت خالصتان کے قیام کا نظریہ پہلی بار 1940 میں ایک سکھ دانشور ویر سنگھ بھٹی نے پیش کیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی سامراج سے مکمل آزادی کی قرارداد جواہر لال نہرو دسمبر 1929 میں لاہور میں ہونے والے کانگریس کے ایک اجلاس میں پیش کر چکے تھے. بھٹی کا کہنا تھا کہ انگریزوں نے سکھوں سے ان کی حکومت چھینی تھی اور انگریزوں کے جانے کے بعد آزاد سکھ ریاست کا قیام سکھوں کا جائز مطالبہ اور ان کا حق ہے. 1946 میں نہرو نے بھی سکھوں کی ایک آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہوئے انگریزوں سے آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد پر زور دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب انگریز نے برصغیر کی تقسیم کا فیصلہ کیا تو اس وقت کے سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے ایک علیحدہ سکھ مملکت کے قیام کے مطالبے کے بجائے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. ماسٹر تارا سنگھ نے محمد علی جناح کی جانب سے پارلیمنٹ میں 30% نمائندگی کی پیشکش مسترد کرتی تھی جو جناح کی جانب سے انہیں اس وقت پنجاب میں سکھوں کی 30% آبادی کی بنیاد پر کی گئی تھی. ماسٹر تارا سنگھ کا یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سکھوں کی کئی نسلوں کو بھارت کی غلامی میں دے دیا. ماسٹر تارا سنگھ کا یہ ایک نیم خود مختار ریاست یا آزاد ریاست کا خواب اس وقت بکھر گیا جب 1956 میں بھارت کے اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن نے پنجاب کو ایک صوبے کی حیثیت دینے سے انکار کر دیا.
नेहरू को सिख क़यादत की जानिब से उनके माजी में सिख रियासत के क़याम के हवाले से उनका बयान याद दिलाया गया तो नेहरू ने जो जवाब दिया वो सिखों के जख्मों को आज भी हरा कर देता है। नेहरू ने कहा था, यू मिस दी बोर्ड। इसका सलीस तर्जुमा किया जाए तो उन्होंने सिखों से कहा, मौका गंवा दिया है और अब हमारी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। इसके बाद सिखों की अपने सूबे के हसूल की एक लंबी तारीख, जिसमें जेलें, मुसीबतें, तजलील उनके मुकद्दर का हिस्सा बनी। 1965 की पाक भारत जंग में सिखों की गैर मशरूत हिमायत और कुर्बानियों के बाद 1966 में बिल आखिर भारत पंजाब को एक अलग सूबे या रियासत का दर्जा देने पर राजी हो गया, मगर भारत की बदनीयती इस फैसले में भी कार फरमा रही। उसने मशरकी पंजाब को 3 सूबों या रियासतों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तकसीम कर दिया, जबकि चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब का मुश्तरका दारुल हुकूमत बना दिया, जिस पर सिख राजी न थे। भारत की मरकजी हुकूमत की जानिब से सिखों के साथ ज्यादतियों का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। ये अलग बात कि इसकी शिद्दत में कमी या ज्यादती होती रहती थी। 1971 में पाकिस्तान टूटने के बाद इंदिरा गांधी की मकबूलियत भारत में उरूज पर थी। सिखों की तंजीम अकाली दल अच्छी कारकर्दगी न दिखा सकी और पंजाब में भी कांग्रेस की हुकूमत बन गई। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहब करारदाद मंजूर की, जिसमें अलग रियासत तो नहीं लेकिन पंजाब को ज्यादा खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया गया, मगर भारतीय मरकजी हुकूमत की जानिब से सिखों के साथ इम्तियाजी सलूक बंद न हुआ। सिख नौजवान मुसलसल जेर अताब रहे, गिरफ्तारियां, तशद्दुद आम सी बात थी। इस सूरत हाल में एक सिख सूफी और दानिश्वर जरनैल सिंह भिंडरावाला मंजर आम पर आते हैं और सिखों के मसाइल का हल सिर्फ भारत से अलहदगी और एक आजाद सिख रियासत के कयाम को करार देते हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला का ये पैगाम सिखों बिलखुसूस नौजवानों में उनकी मकबूलियत को तेजी से बढ़ाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि खालिस्तान का कयाम, जो अब तक निजी महफिलों में जेर बहस आता था और इसका जिक्र दबे अल्फाज में होता था, अब चौकों और चौराहों पर जेर बहस आने लगा। खालिस्तान के नारे अब भारतीय पंजाब के गली कूचों में आम सुनाई देने लगे। मुसलसल तशद्दुद और नाइंसाफी का शिकार सिख नौजवान मजीद जुल्म सहने को तैयार न थे। आजादी के लिए बैलेट के बजाय बंदूक का नारा इनके दिलों में घर करने लगा था। सिखों को अब जरनैल सिंह भिंडरावाला जैसी करिश्माती शख्सियत की क़यादत हासिल थी। जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अपना मरकज सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल को बना लिया था। इंदिरा गांधी की हुकूमत सिखों की इस बढ़ती बेदारी से बौखला उठी और फौज को हुक्म दिया कि हर कीमत पर गोल्डन टेम्पल को जरनैल सिंह भिंडरावाला और इसके पैरोकारों से खाली कराया जाए, चाहे इसकी कुछ भी कीमत देनी पड़े। फिर 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज किया जाता है, जिसमें ताकत का वहशियाना इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि टैंक गोल्डन टेम्पल में दाखिल कर दिए जाते हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज को बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके हामी इस बेजिगरी से लड़े कि भारतीय फौज को दांतों तले पसीना आ गया। इस लड़ाई में जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके सैकड़ों साथी शहीद कर दिए जाते हैं। गोल्डन टेम्पल को शदीद तरीन नुकसान पहुंचता है। अकाल तख्त को टैंकों के गोलों से निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक के सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम दरबार साहब पर भी गोलियां बरसाई जाती हैं। गोल्डन टेम्पल में होने वाली तबाही और हलाकतें सिखों की रूह पर लगने वाला वो जख्म है जो आज तक नहीं भर पाया है। गोल्डन टेम्पल पर हमले का बदला लेने के लिए चंद माह के अंदर ही भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख मुहाफिज गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। हजारों सिख मारे जाते हैं। इस कत्लेआम में किसी बूढ़े का लिहाज किया गया, किसी औरत का, न किसी बच्चे का। कत्ल किए जाने के लिए उसका सिख होना ही
काफी था। सिखों के घर लूट कर इन्हें आग लगा दी जाती है, करोड़ों की अमलाक तबाह की जाती हैं, सिखों के कारोबार भी निशाना बनाए जाते हैं। और जब मकतूल भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस के मरकजी रहनुमा संजय गांधी से सहाफी सवाल करते हैं कि इस कत्लेआम को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे, संजय गांधी ने सर्द लहजे में कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब कोई बड़ा और भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है और ही। फिर दिल्ली की सड़कों पर धरती कई दिन तक हिलती रही और कत्लेआम सरकारी सरपरस्ती में जारी रहा। पुलिस मजलूमों के बजाय कातिल और हमला आवर गुंडों की मुहाफिज बन गई थी। बात यहाँ पर ही नहीं रुकी। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और 2 के नाम से 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए जो 1995 तक जारी रहे, जिसमें भारतीय पंजाब के गांवों, देहातों और शहरों में सिखों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ये वो वक्त था जब सिखों पर होने वाले मजालिम और उनके कत्लेआम की खबरें पूरी दुनिया में छप रही थी और सिख बड़ी तादाद में भारत छोड़कर मगरबी मुल्कों में पनाह ले रहे थे। आज बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में मुकीम सिखों के अंदर खालिस्तान के कयाम की जो तड़प है वो भारतीय मजालिम ही का नतीजा है। अब सिख माशी और सियासी लिहाज से यूरोप और बिलखुसूस कनाडा में भरपूर ताकत रखते हैं, जिससे भारतीय हुकूमत शदीद खौफजदा है, जिसके बायस उसने अपनी खुफिया एजेंसी रा के जरिए बैरून मुल्क मुकीम सिख रहनुमाओं के कत्ल का सिलसिला शुरू किया है और खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह की शहादत भारतीय हुकूमत की इसी पॉलिसी का नतीजा है।